majority of the nutrients that are required for the growth and development of plants are available to the plants by the weathering of rock particles, or we can say breaking of the rock particles, and these minerals that are available from these rock particles, they mix with the soil and then they are available to the roots of the plants. Roots absorbs these minerals directly from the soil, and these minerals as well as charged particles which are present inside the soil, and they are most commonly playing an important role in the nutrition of plants. That is why this type of nutrition, as we have already studied, is called the mineral nutrition. So mineral nutrition में we have studied the roles of various mineral elements. Moreover, there are some biological microorganisms that are also present inside the soil. कुछ microbes भी present होते हैं soil के अंदर, and they also provide oxygen and they also provide water to the roots of the plants, or they also provide a medium or stabilize the medium by means of which plants they are getting everything, कि इस तरह से एक तरह से मीडियम को वो स्टेबलाइज कर देते हैं जिसमें प्लांट्स को जो भी रिक्वायरमेंट हो दैट इज फुलफिल्ड. आई मीन टू से सॉइल इज ए रिजर्वायर ऑफ वेरियस मिनरल्स एज वेल एज बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय मीन्स ऑफ विच वेरियस न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू द प्लांट. न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को. सो द सॉइल इज ए रिच सोर्स ऑफ रिजर्वायर. सॉइल ही है जिसमें प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करती है, ठीक है. और बहुत सारे माइक्रोब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और इसके अलावा देयर आर फिर भी कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी बनी रहती है सॉइल में. एंड इफ़ इट टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस, ये तीन एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जिनकी कमी तो हर तरह की सॉइल में, एंड ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सॉइल इज डेफिशिएंट इन दीज three elements. Or how it is fulfilled? Of course by artificial means. I mean to say every soil is supplied with various kinds of fertilizers to fulfill the needs of such kind of elements, and these elements are called the critical elements. Critical elements कौन से हैं जिनकी soil में deficiency बनी रहती है? तो उसमें से there are three main: nitrogen, phosphorus and potassium. They are critical elements. क्रिटिकल एलिमेंट है एंड दे आर नीडिड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड इनमें से सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल है नाइट्रोजन, ठीक है. तो right now we are going to start with the nitrogen metabolism, nitrogen fixation, or in what manner nitrogen cycle is being operated in the environment. किस तरह से plants, in what manner plants they are fulfilling their requirement of the nitrogen. As we know, nitrogen is a most abundant prevalent element, and it is at the fourth level of the element that is required by the plants and is present on this earth. सबसे ज़्यादा उन 4 एलिमेंट में से है जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और जो अवेलेबल है. और इन द गैशियस फॉर्म इट इज़ फॉर्मिंग द 78%. इन स्पाइट ऑफ दीज थिंग्स, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होने के कारण भी इट इज़ नॉट डायरेक्टली अवेलेबल टू द प्लांट्स. डायरेक्टली तो अवेलेबल होता ही नहीं है, तो इट डेफिशिएंसी इज फुलफिल्ड बाय वेरियस मीन्स. एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ साइकिल दैट इज़ बीइंग ऑपरेटेड इन दिस एनवायरनमेंट. इस पूरे पूल में एक साइकिल ऑपरेट की जाती है नाइट्रोजन की, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नाइट्रोजन लिविंग बींग्स का. एंड किस तरह से इट इज़ फॉर्मिंग, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंजाइम्स, एंड इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हार्मोन्स, प्रोटीन्स or any other organic components. All living beings are necessarily made of such kind of biomacromolecules, and these biomacromolecules all they contain the nitrogen as an important mineral. And इसकी जो फिर कमी कैसे पूरी होगी? in spite of its unavailability as a nitrogen कंपाउंड, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में ये अवेलेबल है विच इज़ वेरी इनर्ट फॉर्म. तो ये कैसे पूरी करता है? बाय मीन्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. तो टुडे वी शुड नो व्हाट इज़ ए नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल क्या है? इट इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस. नाइट्रोजन साइकिल, इट इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस that occurs amongst the reservoir pool
रिजर्वायर पूल यानी कि रिच सोर्स नाइट्रोजन का कहाँ है, एनवायरनमेंट, जो गैशियस फॉर्म में जहाँ मिलती है। रिजर्वायर पूल एंड अलोंग विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ कोर्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर हैविंग नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। किस फॉर्म में, ऑर्गेनिक कंपोनेंट के फॉर्म में। एंड थर्डली between the amongst the reservoir pool, living organism and lithosphere और सॉइल एंड पूल। सॉइल में बहुत नाइट्राइट की फॉर्म में या नाइट्रेट की फॉर्म में या अमोनियम फॉर्म में it is available, and all these forms are being converted by the microorganisms। कुछ तो microorganisms के द्वारा कन्वर्ट होती हैं, एंड देयर आर सम नेचुरल प्रोसेसेस दैट आर बीइंग ऑपरेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है कि जो नाइट्रोजन साइकिल है उसके 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स किन किस के बीच में ट्रेवल करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्वायर यानी कि एनवायरनमेंट में इनर्ट फॉर्म में है, ठीक है। और इसकी जो डेफिशिएंसी है, ये व्हेन एवर इट इज फिक्स्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट तो नाइट्रोजन कम हो जाएगी। तो हाउ इट इज अवेलेबल टू द एनवायरनमेंट, अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन से ये फिर से अवेलेबिलिटी विल बी फुलफिल्ड। तो दिस व्हाट इज दिस प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। और सेकंड देखना है हमने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक फॉर्म में है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किनका, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। एंड थर्डली लिथोस्फीयर, सॉइल में कैसे आती है, बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन जितनी भी है बायोलॉजिकली अमोनियम, और फिर अमोनियम से नाइट्राइट एंड नाइट्राइट से नाइट्रेट की फॉर्म में बाय मींस ऑफ वेरियस बैक्टीरियाज इट इज़ बीइंग फिक्स्ड, ठीक है। तो वो सब फिक्स होकर अल्टीमेटली प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। एंड व्हेन प्लांट्स आर ईटन बाय द एनिमल्स तो एंड इट विल बिकम पार्ट ऑफ एनिमल बायोमास। एंड whenever they are decomposed, again ammonification से it will enter into soil pool, फिर से soil में enter कर जाएगी, और again some of the nitrate by the process of denitrification is converted into nitrogen again. So these are all of these cyclic process that is constantly operates being operated between the all these the 3 components of the biosphere के 3 components जिसमें we can say living beings and environment, atmosphere as well as lithosphere, they all come, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल तो हमें पता चल गई किस तरह से ये ऑपरेट होती है। नाउ वी कम टू वेरियस प्रोसेसेस, किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स हैं नाइट्रोजन साइकिल के, और how in what manner it is being fixed into various nitrogen rich compound. First of all कौन कौन से हैं बायोलॉजिकल, तो वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल, तो इसको तो सबसे बाद में हमने डिटेल में स्टडी करना है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट इंडस्ट्रियल, और इंडस्ट्रियल से पहले वी आर फर्स्ट ऑफ स्टार्टिंग विद द फिजिकल और द एबायोटिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेसेस कौन से हैं, और नेचुरल प्रोसेसेस by means of which this atmospheric nitrogen is converted into the किसमें oxides of nitrogen। and oxides of nitrogen कौन से हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रेट, or we can simply call nitrite as well as nitrate. तो first start with there are various chemical reactions that are occurring in the environment, और कब होती हैं, during the thundering and lightning, जब बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है या थंडरिंग होती है एनवायरनमेंट में, नाइट्रोजन क्या करती है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है। एंड व्हाट इज बीइंग फॉर्म फर्स्ट, तो सिंपलेस्ट कंपाउंड बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू 1 or 3 सिंपल केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस को करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी शुड नो कि किस तरह से एनवायरनमेंट में ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंबाइन कर रही हैं, और बहुत सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन रहे हैं। दे मे बी NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, और वी कैन से और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली रिएक्शंस हो रही हैं एनवायरनमेंट में। तो फर्स्ट तो केमिकल रिएक्शन जस्ट आई हैव रिटन, एंड सेकंड इसमें हम देख सकते हैं थंडरिंग एंड लाइटनिंग प्रोसेस से व्हाट इज गोइंग टू हैपन,
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ड्यूरिंग ओजोनाइजेशन ऑल्सो, जब ओजोन बनती है ना तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी कंबाइन करती हैं, O3 O2 कंपोनेंट्स बनते रहते हैं, और उनके साथ फिर नाइट्रोजन ज्वाइन करके क्या बनाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और दूसरे ऑक्साइड्स भी बनाती है. नाउ व्हेन दिस नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइंस अगेन विद सम एटॉमिक ऑक्सीजन, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब इसमें 2 ऑक्सीजन है ना, तो इसको हम कह देते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. और व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर, रेन तो होती है, थंडरिंग एंड क्लाउडिंग आफ्टर इट इज फॉलोड बाय द रेन. जब बरसात होती है तो वाटर इज रिलीज्ड एंड वाटर कंबाइंस इन द एनवायरनमेंट विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू फॉर्म वेरियस HNO2, जिसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और HNO3. वट एवर केमिकल रिएक्शन, ये तो मैंने 2-3 एग्जाम्पल बताए हैं, तो इस तरह से बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस बनती रहती हैं. एंड व्हाट वी आर टू कंसर्न विद दिस नाइट्रस, इट कम्स इन द सॉइल अलॉन्ग विद द वाटर, एंड दिस नाइट्रेट इट ऑल्सो कम्स विद द सॉइल विद दिस वाटर. तो दे बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल, सॉइल का एक हिस्सा बन जाते हैं बोथ ऑफ दिस. एंड देन comes the roles of various microorganisms that we are going to study later on, बाद में हम देखेंगे. और इस तरह से तो ये फिजिकल प्रोसेस हुआ जिसमें मेन एनर्जी कहाँ से सप्लाई होती है, लाइटनिंग से या थंडरिंग से, लाइटनिंग प्रोसेस से या थंडरिंग के प्रोसेस से, when energy is being supplied. And after that there comes a second process which is industrial. Industries में भी what happens, chemical process, such kind of chemical reactions are being done by artificial means. जैसे कि फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री हैं जहाँ पे फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं. तो हेबर प्रोसेस इज ए मोस्ट फेमिलियर प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन अंडर हाई टेम्परेचर एंड अंडर वेरी हाई प्रेशर, एंड दे कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया. किसमें, अमोनिया में चेंज होते हैं. Ammonia is converted into ammonium ion by various chemical processes, and when it combines with CO2 or water, then it is forming the urea. क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं. And this urea is acting as a fertilizer. NH2CO NH2 is a chemical formula. आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे सब. तो ये मेन कंपोनेंट है जिसमें नाइट्रोजन रिच कंपोनेंट, इट इज़ फॉर्म बाय आर्टिफिशियल मीन्स. आई मीन टू से कि नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इंडस्ट्रियली ऑल्सो, इंडस्ट्रीज में भी इस तरह से फिक्स की जाती है. ठीक है, और किस तरह से ये इन व्हाट मैनर इट इज़ फॉर्मिंग इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में ये सॉइल में सप्लाई की जाती है. और यूरिया इज़ ए वेरी गुड फर्टिलाइज़र, एकदम से रैपिडली ग्रोथ करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है प्लांट्स में. लेकिन टू बी वेरी केयरफुल, इसकी सप्लाई और इसको यूटिलाइज प्लांट्स के द्वारा करना बहुत केयरफुली करना चाहिए, अदरवाइज देयर इज़ एन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ दिस ऑल्सो. बट वट एवर बी द रीज़न, आई मीन टू से फिजिकल प्रोसेस से भी हमने देखा कि नाइट्रस कंपाउंड और नाइट्रिक एसिड दे हैव कम इनसाइड द सॉइल, और इंडस्ट्रीज में भी ये अमोनिया और यूरिया एंड दे आर ऑल बीइंग सप्लाइड टू द सॉइल, सॉइल में आ जाते हैं. अब हम आते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम देखेंगे किस तरह से ये अमोनिया बन रही है और हाउ अमोनिया is being converted into nitrite and then nitrate. All these are part of a nitrogen cycle. हमने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट देखना है बायोलॉजिकली नाइट्रोजन कैसे फिक्स हो रही है और फिर वो किस तरह से एंटर कर रही है नाइट्रोजन साइकिल में बाय नाइट्रिफिकेशन, और बाय डी नाइट्रिफिकेशन कैसे एनवायरनमेंट में फिर से एंटर हो गई, और बाय अमोनिफिकेशन. टू मेन पार्ट्स वी हैव टू स्टडी, अमोनिफिकेशन, 2 or 3 parts that are important part of. There are 3 main chemical processes, I mean to say ammonification we have to study, and it is a part of nitrogen cycle. हमने उसमें बताना है कि किस तरह से ये अमोनिया कैसे बनी, अमोनिफिकेशन by death and decomposition of living beings, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, और किस तरह से वो अमोनिया में कन्वर्ट हुए, अमोनिफिकेशन. और देन अमोनिया
in what manner has converted into nitrite and then nitrate. That is second process, nitrification. Name of the bacteria we have to keep in mind. And then how this nitrate is again converted into into nitrogen again by the denitrification. तो ये three aspects पहले हम पढ़ते हैं. Then we will be starting with the major part, what is biological nitrogen fixation. सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या हैं और किस तरह से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को करते हैं और इन व्हाट मैनर दे आर रिजाइडिंग इन द प्लांट्स, कहाँ रहते हैं, तो वो तो हमने डिटेल में करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद व्हाट इज अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन.